Good morning, student of class 8 and 9. In my previous class, I have completed chapter number 1, that is Introduction to Biology. But our home task is not completed. So today, first I note down all the remaining questions plus exercise work, then trying to start second chapters of biology, that is structural organization of life. So first write down your home task. Question number 1, write down the translation of Quranic verses about A. Significance of water. B. Growth and variety of plant. C. Usefulness of plant and animals. D. Mechanisms of reproduction. E. Origin of life. Question number 2. Define biogenesis and abiogenesis. Question number 3. Describe the dye experiment to prove biogenesis. Question number 4. Describe Needham experiment to prove abiogenesis. Question number 5. Describe Pasteur experiment to show biogenesis. Write down importance of biology. Or question number 7 is the describe biological studies on human welfare. Plus एक्सरसाइज वर्क नेक्स्ट स्लाइड में आंसर सॉल्व की भी आपको मिल जाएंगी. Now come to chapter number 2. Open your book and turn to page 26. This chapter includes cell as a basic unit of living organism, discovery of cell and cell theory, concept of light microscope and electron microscope, microscopic and ultra microscopic structures of plant and animal cell, structure and function of different cell structure, concept of prokaryotic and eukaryotic and their difference, reproduction of cell, different method, mitosis and meiosis and their significance, 3 level of organization in living organisms, that is tissue, organ and system, type of plant tissues, simple and compound tissues, their further classification and function in different parts of the plant body, type of animal tissues, epithelial, connective tissues, muscles tissues, nervous tissues, structure of these in relation to their function, unicellular organization, amoeba as a unicellular organism, multicellular organization, brassica as multicellular organization with root, stem, leaf, flower, fruit and seed as their parts, frog as multicellular organization with digestive, respiratory, circulatory, excretory, nervous and reproductive organs and system. Let us start our first topic, that is cell. स्टूडेंट, जिस तरह केमिस्ट्री में मैटर छोटी यूनिट एटम से मिलकर बना है, इसी तरह तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल है. यानी एक सेल वो चीज़ है जो तमाम वाइटल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. वाइटल फंक्शन कौन से फंक्शन है? वो फंक्शन है जो किसी भी चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है. अब जहन में सवाल तो पैदा होता है कि एक सेल किस तरह तमाम वाइटल फंक्शन कर सकता है. तो बेटा इसके लिए अपने जहन के अंदर अमीबा का कंसेप्ट लेकर आइए. अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. क्या वो फूड नहीं लेता? क्या वो रिप्रोड्यूस नहीं करता? क्या वो एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन जैसे काम नहीं करता? यकीनन करता है. तो अब हमारे जहन के अंदर एक कंसेप्ट आ गया कि सेल एक ऐसी चीज़ है जो तमाम के तमाम फंक्शन, वाइटल फंक्शन कर सकता है. अब सवाल ये पैदा होता है कि सेल किस तरह डिस्कवर हुआ. अगर हम कहें ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, जो कि बायोलॉजिकल मेथड का फर्स्ट स्टेप है, तो यकीनन इतनी स्मॉल यूनिट को देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत होगी. और इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल की गई वो मैग्नीफाइंग ग्लास था. फिर 1610 में गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप बनाई, जिसके ज़रिए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी मुमकिन हुई. 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई और इसने अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए जब कॉर्क के बारीक स्लाइस को देखा तो इसे इस स्लाइस में शहद की मक्खी के छत्ते की तरह छोटे छोटे चैम्बर से नज़र आए.
जिसको देखकर उसके जहन में ईसाइयों की खानकाहों में बने छोटे कमरे आए और उसने कॉर्क स्लाइस में ऑब्जर्व होने वाले इन चैम्बर्स को सेलुली और सेल का नाम दिया। 1842 में ड्यूट्रोचेट ने प्लांट मटेरियल को नाइट्रिक एसिड में बॉयल किया और इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो प्लांट मटेरियल सेल से बने नजर आए। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्चिड में एक स्फेरिकल बॉडी यानी न्यूक्लियस डिस्कवर किया। 1838 में जर्मन बायोलॉजिस्ट शेल्डन ने बताया कि तमाम प्लांट सेल से मिलकर बनते हैं। अगले साल ही एक और जर्मन बायोलॉजिस्ट शोवन ने बताया कि तमाम एनिमल भी सेल से ही मिलकर बनते हैं। इसने तमाम एनिमल सेल में न्यूक्लियाई को ऑब्जर्व किया, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल देखने में नाकाम रहा। 1858 में वर्जू ने बताया कि नए सेल दूसरे सेल से बनते हैं, यानी एनिमल सेल से एनिमल सेल बनते हैं और प्लांट सेल से प्लांट सेल बनते हैं। और इन तीन बायोलॉजिस्ट की कंबाइन एफर्ट्स के नतीजे में सेल थ्योरी बनी। अब हम आते हैं सेल थ्योरी की साइलेंट फीचर्स की तरफ। अकॉर्डिंग टू दिस, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। इस थ्योरी का पहला पॉइंट है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या तो एक या इससे ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। नंबर 2, सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल जो है वो ज़िंदगी के तमाम फंक्शन सर अंजाम देता है। तीसरा पॉइंट है, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए सेल पहले से मौजूद सेल्स की तकसीम से ही बनते हैं। बच्चों, बायोलॉजी और इवन साइंस में किसी भी नई चीज़ को डिस्कवर करने के लिए अगरचे साइंटिफिक मेथड्स के पहले स्टेप यानी ऑब्जर्वेशन में इंसान अपनी 5 सेंस की मदद लेता है, लेकिन साथ ही इसको यकीनन कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत होती है जिनके ज़रिए वो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को इंक्रीज़ कर सके, बढ़ा सके। देखो बेटा, हम आँखों से बड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो देख सकते हैं, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा वगैरह हमें अपनी आई से, नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। तो इनको देखने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। सेल की डिस्कवरी और बुनियादी स्टडी इसी वक्त पॉसिबल हुई जब 1665 में रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई। ये माइक्रोस्कोप और इसकी डिफरेंट टाइप आज भी सेल की स्टडी में हेल्पफुल हैं, लेकिन किस तरह? माइक्रोस्कोप की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिनकी बदौलत आज हम ऐसी बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं जिनको हम सिर्फ अपने आइज़ की मदद से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप की ये क्वालिटीज़ अब हम आपको डिफ़ाइन करेंगे। नंबर 1 है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? ये माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी है जिसके ज़रिए एडजेसेंट ऑब्जेक्ट यानी वो चीज़ें जो एक दूसरे के करीब करीब मौजूद होती हैं को अलहदा किया जा सके। सेल में तमाम ऑर्गेनेल्स और पार्ट एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, तो माइक्रोस्कोप की इस एबिलिटी के ज़रिए हम इनको सेपरेट करके बआसानी इनके स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन का दूसरा पॉइंट है, रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हद तक नहीं की जा सकती, इसको सिर्फ कुछ हद तक ही किया जा सकता है। रेजोल्यूशन को इस्तेमाल होने वाली सोर्स और इल्यूमिनेट की वेवलेंथ के ज़रिए बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइट माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन विजिबल लाइट है। दूसरी अहम क्वालिटी जिसके ज़रिए माइक्रोस्कोप हमें इन स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखने में यूज़फुल है वो है इसकी मैग्नीफिकेशन पावर। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन के ज़रिए ऑब्जेक्ट का साइज़ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैग्नीफिकेशन सिर्फ एक हद तक ही है मुमकिन है। ज़्यादा करने से ऑब्जेक्ट की रेजोल्यूशन डिस्टर्ब होती है। नंबर 3, मैग्नीफिकेशन
को लेंस की फोकल लेंथ के ज़रिए बेहतर बनाया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप के ज़रिए। नंबर 1, लाइट माइक्रोस्कोप। साइंटिस्ट ने इब्तिदा में जिस माइक्रोस्कोप को अपनी स्टडी के लिए इस्तेमाल किया वो लाइट माइक्रोस्कोप थी, जिसे आज भी हम अपनी बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। इनमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन विजिबल लाइट है। मैग्नीफिकेशन के ज़रिए ग्लास लेंस मैग्नीफिकेशन के लिए ग्लास लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप अगरचे ऑब्जेक्ट को 1000 टाइम मैग्नीफाई कर सकती है, लेकिन इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत कम यानी 0.2 माइक्रोमीटर है। लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम लाइव सेल यानी जिंदा सेल की स्टडी कर सकते हैं। दूसरी टाइप के माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। 1935 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई। इसमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के तौर पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन एबिलिटी लाइट माइक्रोस्कोप की बनिस्बत बहुत अच्छी यानी 0.2 नैनोमीटर्स है। नैनोमीटर्स 10⁻⁻⁹ के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लेंस की जगह इलेक्ट्रोमैग्नीट्यूड्स किए गए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेजेस को इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता, इसलिए फोटोग्राफिक प्लेट को इमेजेस फोकस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी कर सकते हैं, जिनको लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए नहीं देख सकते थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करने में मुख्तलिफ फ़िज़िकल और केमिकल यानी इसका सैंपल बनाने के लिए, सैंपल वो चीज़ होती है जिसको हम पहले लिविंग सेल से एक ऐसी मटेरियल तैयार करते हैं, उसके ऊपर कुछ फिज़िकल और केमिकल मेथड्स इस्तेमाल करके कि जिसको फिर हम बासानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ कर सकें और फिर उसके ज़रिए हम स्टडी करते हैं। तो इन बहुत सारे फिज़िकल और केमिकल मेथड के इस्तेमाल करने के दौरान सेल जो है वो ज़िंदा नहीं रहते। इस वजह से इसकी एक ये वो है कि हम इसके अंदर जो एक ज़िंदा सेल की स्टडी नहीं कर सकते, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम लाइव सेल की स्टडी कर सकते हैं।